جائز نہیں, ہم اس کی اجازت نہیں دیتے علماء. بہت سے کہتے ہیں نا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں نکال دینا, کسی اندھے کو لگا دینا, میرا کڈنی فلاں جگہ دے دینا فلاں. آپ کا کڈنی خدا نخواستہ خراب ہے, ہاسپٹل میں کوئی کڈنی ہے یا زندہ آدمی اپنا کڈنی دے دیتا ہے, اس میں علماء کے اچھا خاصا اختلاف ہے. بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں, لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے. یا تو وقتی فوری کوئی ضرورت ہو کسی کو, لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ کر دیں, کڈنی مرتے ہوئے ڈونیٹ کر دیں آپ, یا کوئی بھی جسم کا پارٹ آپ کہیں کہ یہ نکال کے کسی کے بھی لگا دینا کیونکہ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں. تو جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کو علماء کے اس فتوے پہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت سے روک رہے ہیں لوگوں کو, یہ لوگوں کو انسانیت کی خدمت سے. بھائی ایک آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں, یہ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ کر دے تو وہ بیچارہ نابینے کی آنکھیں لگ جائیں گی تو کام آ جائیں گی نا. تو کیا ہے انسانیت کی خدمت؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہے. جب انسان اتفاقی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے تو ہم ان لبرل لوگوں سے کہتے ہیں کہ پھر صرف آنکھیں ہی ڈونیٹ کرنے کی بات مت کرو. بہت سے غریب علاقوں میں خوراک کی کمی ہے, پھر میت کو یہ بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ وصیت کرے کہ میں جب مر جاؤں تو میرا گوشت فلاں غریب علاقے میں بانٹ دینا. بھائی کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے, بہت سے علاقوں میں گوشت بہت مہنگا ہے, تو میں مر جاؤں گوشت کا لیبارٹری ٹیسٹ کرا دینا کہ کوئی جرم نہ اس کے اندر, اگر وہ نہیں ہے تو فلاں علاقے میں بھی تھر گیا نا, میرا دورہ بھی تھر کا ہوا تھا, ویڈیو آئی تھی اس میں. ہم جب ریگستانوں کے اندر گئے ہیں 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے, ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا. قربانی کا گوشت نے ایک ٹرسٹ پھر تقسیم کرتا ہے تو بقرعید میں ان کو گوشت مل جاتا ہے. جب تک وہ ٹرسٹ جو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہے, جب تک وہ ٹرسٹ ان کو گوشت نہیں دے رہا تھا تو وہ کئی سال گزر جاتے تھے ان کو گوشت کھائے ہوئے. سبزی ایک قسم کی اور دال, سبزی بھی ایک ہی جیسی پورے سال جو وہاں اگتی ہے. ایسے پسماندہ علاقے بہتر نہیں ہے کہ آپ مرنے سے پہلے وصیت کر دیں یار میں مر گیا تو صرف آنکھوں کی کیا بات ہے, خوراک تو انسان کو پہلے چاہیے نا. تو میرا گوشت تھر میں ان غریبوں کو بانٹ دینا, میرا نہیں بانٹ دینا, میں مثال دے رہا ہوں, پتہ چلا کوئی کلپ چلا دی مفتی صاحب نے وصیت کی ہے. تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جو آپ کے پاس اس کا جواب ہے نا کہ یہ انسانیت کی بے اکرامی ہے, توہین ہے. موت کے بعد بھی انسان قابل تعظیم ہے, اس لیے کہ یہ اتفاق سے نہیں بنا, یہ مقصود کائنات ہے. اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا. سب سے زیادہ قابل تعظیم کون ہے؟ انسان. اس کی بے اکرامی کی اجازت نہیں ہے, اس کو رہنے دو جیسا ہے. باقی قبر میں جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہم اسے غسل دیں گے, ہم اسے عزت کے ساتھ کفن پہنائیں گے, پھر کتنا پروٹوکول سامنے رکھ کے نماز پڑھیں گے. اتنا پروٹوکول تو دنیا کا کوئی مذہب کسی مرنے والے کو نہیں دیتا. یہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں انسانیت نہیں ہے, معاذ اللہ. جتنی انسانیت اسلام میں ہے اتنی کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے. اور ان لبرل لوگوں کے ہاں تو انسانیت ہے ہی نہیں. ان کے ہاں تو کوئی ریلیٹیو مر جائے نا تو گھر میں نہیں رکھتے اس کو, وہیں سے عیدی سینٹر سے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جتنے مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے میت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. میں نے کوئی مذہب پہ چلنے والا نہیں دیکھا کہ ابا کے انتقال کی خبر آئی ہو اور وہ کہے ڈائریکٹ عیدی سینٹر پہنچا دو اس کو, وہیں غسل کفن سے وہیں سے دفن. لبرلز میں ایسے بہت دیکھے ہیں, ابا کو ڈائریکٹ اسپتال سے کہاں عیدی سینٹر, ایک فارمیلٹی پوری ہوگی وہیں غسل کفن, وہیں سے کہاں وہیں سے پتلی گلی سے دفنا دو. اور جو زیادہ لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے وہ تو کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہوتے, ماڈرن ہے بہت زیادہ. دفنانے کے بعد اطلاع دے دینا انتقال ہو گیا ہے. تو وہی کلچر تو اسلام نے پروٹوکول دیا, اس لیے کہ اسلام کہتا ہے یہ مقصود کائنات, یہ مرا نہیں ہے, یہ ایک جہاں سے دوسرے جہان میں شفٹ ہو گیا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ قبر کے اندر کیڑوں نے کھا کے ختم کرنا ہے, بھائی وہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے, وہ کیڑوں کا ہیڈ ایک ہے. وہ اللہ جانے اور بندہ جانے. اللہ نے نظام بنایا ہے مٹی کھا کے ختم کرے گی, جسم ختم. یہ جسم ہمیں امانت کے طور پہ ملا ہے, یہ چھین لیا جائے گا ہم سے. تو اللہ کو اجازت ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. دیکھو اللہ نے قتل کو حرام قرار دیا نا, کسی انسان کو کسی نے قتل کیا, قرآن کہہ رہا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا.
اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی، غیر مسلم کا قتل بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے مسلم کا قتل، اور مسلم کو قتل کیا تو اور بڑا گناہ۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ ہم کسی انسان کو مار دیں اتنا بڑا گناہ، اور تو روزانہ کروڑوں انسانوں کو ویسے ہی مار دیتا ہے۔ کتنے لاکھوں انسان مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کتنے لوگ مر رہے ہیں نا، جنازے پہ جنازے، روز قبرستان میں جا کے دیکھو درجنوں نئی میتیں آتی ہیں۔ تو اگر ہم اللہ پہ اعتراض کریں کہ اللہ ہمیں تو نے قتل کرنے سے منع کیا ہے، جان لینے سے، اور تو صبح شام کیا کرتا ہے؟ جان لیتا رہتا ہے، تو اللہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، تم سب میرے ماتحت ہو، بنایا بھی میں نے، موت بھی میں دوں گا، تمہیں اپنے جیسے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں، ایسی حکومت کہ اس کی جان کے مالک بن جاؤ، نا 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 نا۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا کسی کو آگ میں جلانے سے منع کیا ہے، سخت، نہ جانور کو آگ میں جلا سکتے ہیں نہ انسان کو، سزا کے طور پر نا قتل کرنا اگر حکم ہے بھی تو گردن اڑائی جائے گی، آگ میں جلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آگ کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے۔ تو اس کی لاجک کیا بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ سے عذاب وہی دے سکتا ہے جس نے آگ کو بنایا۔ اللہ کو یہ رائٹ ہے کہ سزا کے طور پر جہنم کی آگ میں داخل کر دے، وہ اللہ ہے، اس کو حق ہے، وہ مطلق بادشاہ ہے، انسان کو حق نہیں ہے۔ وہ ایک ایتھیسٹ یہ اعتراض کر رہا تھا اسلام پہ کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام پیس اور امن اور یہ سب چیزوں کا مذہب ہے، اور بقرعید پہ کروڑوں جانور کاٹ دیتے ہیں، تو وہ کاٹتے نہیں ہیں، وہ کٹوائے جاتے ہیں ہم سے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چڑیا کی بھی جان لینا، حدیث کا مفہوم ہے، ہمارے لیے ناجائز ہے بغیر کسی وجہ کے۔ صحابہ کرام میں بعض صحابہ تیر اندازی سیکھتے تھے مرغیوں کو باندھ کے، مرغی کو باندھا، اس کا نشانہ لے رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ مرغی کو تختہ مشق نہ بناؤ، کیونکہ یہ جانور پہ ظلم ہے۔ جانور کا شکار جب کیا جائے گا جب گوشت کھانے کی ضرورت ہو، اس کے علاوہ محض انٹرٹینمنٹ کے لیے جانور مارنا شروع کر دینا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ تو بیلنس ہے نا ہر چیز میں۔ تو میرے بھائی، جو بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا، ہم کیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو فالو کرو، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ صحیح غلط تو بات کی بحث ہے کہ صحیح ہوگا کہ غلط، کیسے یار سمجھائیں، مثالوں پہ مثالیں، کھوپڑی گھومتی ہے میری، منبر پہ جب بیٹھتا ہوں تو کھوپڑی نے سگنل بہت سارے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ جو موضوع چل رہا تھا نا اس کے علاوہ اتنی چیزیں دماغ میں آتی ہیں کہ موضوع کو پکڑ کے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھو آپ جنگل میں ہو، چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ادھر شیر، ادھر چیتا، ادھر لومڑی، ادھر ہاتھی، کہیں جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ ایک ٹریک آپ کو نظر آیا، ایک ٹریک آپ کو نظر آیا، آپ آنکھ بند کر کے اسی ٹریک پہ چلو گے، اس بحث میں نہیں پڑو گے کہ یہ سیدھا راستہ ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے پاس، کوئی ٹریک ہی نہیں ہے کہ جس کو ٹریک کہا جائے۔ دو راستے ہوں گے تو آپ بحث کرو گے یار یہ سیدھا ہے یا یہ والا انڈا موڑ جائے گا، یا ہم تو انڈا موڑ کے ہیں تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ یار اس میں سے انڈا موڑ کون سا والا جائے گا، یہ والا یا یہ والا۔ جنگل میں تو نفس راستہ مل جائے، ٹریک مل جائے، بس بھائی چلو یار ادھر سے تو نکلو یہ کہتے ہیں نا بھائی یہاں سے نکل۔ دیکھو کراچی کے حالات اب کچھ بہتر ہوئے، پھر دوبارہ خراب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کراچی کی حفاظت فرمائے۔ جب بہت زیادہ حالات خراب تھے، صدر میں ٹیبلٹ نے واکنگ کرنا شروع کر دی، یعنی گولیاں چلنا شروع ہو گئی۔ کسی نے پوچھا نا صدر میں گولیاں چل رہی ہیں، اس کی انگلش بناؤ، اس نے کہا ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ، یہ ہمارے ہاں انگلش بولی جاتی ہے، صدر میں فائرنگ ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ اس کا کیا مطلب ہے؟ صدر میں گولیاں۔ وہ ایک خاتون گئی ڈاکٹر صاحب سے، کہنے لگی میرا بچہ کھاندہ نہیں ہے تے پیندہ نہیں ہے تے روتا ہی رہتا ہے، تو ڈاکٹر بیچارے کو پنجابی نہیں آتی تھی، اس کو سمجھ میں نہیں آئی، کہنے لگے بھائی سسٹر آپ انگلش میں بتائیں کیا؟ تو خاتون نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا یہ پتر ہے، نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے، ویبدا ہی ویبدا ہے نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے، بس 24 گھنٹے ویبدا ہی ویبدا ہے۔ تو اس طرح کی بھی رنگیلی انگلش بھی ہوتی ہے۔ تو ٹیبلٹس ور واکنگ ان صدر ان پریزیڈنٹ، صدر میں گولیاں چل رہی تھیں۔ اب کیا ہے کہ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں سے نکلو۔ کراچی میں ایسے بہت حالات ہم نے دیکھے، ابے یہاں سے نکلو، یہاں تو دھماکے ہو رہے ہیں، یہاں تو گولیاں چل رہی، بھاگو۔
اب उसमें एक रास्ता नजर आया तो इसमें नहीं पड़ता ये सही रास्ता है या गलत, भाई रास्ता यही है फिलहाल यहां से निकलने का, तो यहां से तो पतली गली से निकलना है। तो याद रखो अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते ना तो सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि गलत रास्ते पे चलोगे, सिरे से किसी रास्ते पे बोलो ना यार चलोगे ही नहीं। कुरान ने जो गलत रास्ते को रास्ता कहा है वो मजाजन कहा है। मजाज का मतलब होता है एक चीज है नहीं, लेकिन समझाने के लिए उसको ट्रैक से ताबीर कर दिया कि दो रास्ते, एक सीधा और एक गलत। हकीकत में देखो कि गलत रास्ता सिरे से रास्ता है ही नहीं, अंधेरों के अलावा कुछ भी नहीं है। तभी तो कुरान कहता है औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यशाहु मौजुम मिन फौक़िही। साहब इस पर मेरा कई हफ्तों इस आयत पर बयान हुआ था, ये बड़ी जबरदस्त आयत है। जो मुल्हिद है ना, एथियस्ट, जो अल्लाह को नहीं मानता, कितने सारे गुमराह लोग हैं, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिरे से अल्लाह के कायल बोलो ना है ही नहीं, कहते हैं कोई खुदा है ही नहीं सिरे से। इनके पास ये सबसे बड़े गुमराह हैं, क्योंकि इनको तो इतने बेचारे कंफ्यूज हैं, इनको तो यही नहीं पता कि मरने के बाद मुर्दे के कबाब बना के खाने हैं या उसको दफन करना है या आग में जलाना है या गिद्धों को खिलाना है। ये अगर कहते हैं ना कि दफन कर दो एहतराम से, तो ये इसलिए नहीं कि इनकी अकल ये कहती है, इसलिए कि कल्चर ये कह रहा है। तो जब तक कल्चर ये कह रहा है तो फिलहाल कल्चर को फॉलो करो। कल कल्चर अगर चेंज हो गया, ये कोई ऐसी गवर्नमेंट आई जिसने कानून चेंज कर दिया और उसने कहा कि भाई ये जो इतने लोग मर रहे हैं तो इनमें जो जवान दो दांत के हैं ना, जवान बूढ़ों का गोश्त कहते हैं खाने के काबिल, जवान अगर कोई मरता है तो बजाय इसके कि आबादी इतनी बढ़ रही है, इतने गिजा की, उनके कौल के मुताबिक गिजाई की किल्लत हो रही है, तो या जिन इलाकों में किल्लत हो रही है, कमी हो रही है, तो वहां बेहतर है कि इनको डब्बों में पैक करके पार्सल का खास इंतजाम किया जाए। तो क्या है, यूनाइटेड नेशन अगर ये लॉ बना ले तो ये लॉ बन जाएगा। जैसे यूनाइटेड नेशन ने जब ये लॉ बनाया, हमारी नजर में किसी इंसान का गोश्त खा लेना, इसका लॉ पास हो जाना ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन लड़के को लड़के से बदफेली की को लीगल कर देना, ये उससे बड़ा हमारी नजर में क्या है, जुर्म है। ये तो यार बिल्कुल ही अकल के खिलाफ, तो परले दर्जे की बेशर्मी। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने उसको लीगल कर दिया, तो जितने एथियस्ट हैं सबकी नजर में ये क्या है, लीगल, जायज, हलाल, सब क्या कहते हैं ये ठीक है, इसमें क्या हर्ज है, वो भी राजी ये भी राजी। तो मेरे भाई जब वो भी राजी ये भी राजी, तो अगर कोई शख्स इस पे राजी हो जाएगा कि मेरे मरने के बाद मेरे गोश्त की बिरयानी खिलाकर कौओं को खिला दी जाए या इंसानों को अभी तो इंसानों तक ना, जब इंसानों से मामला आगे चलेगा तो फिर चील कौवे भी आएंगे मार्केट में कि यार इंसान नहीं खाता तो जानवरों को खिला दो, खास तौर पे वो कुत्ता जिसको मैंने इतने अरसे से पाला और उसने मुझसे वफा की, उस कुत्ते को खिला दो। अकली लिहाज से इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि अकल को अगर आप देखो तो अकल कहती है कि कीड़ों को कब्र में खिलाने से बेहतर है। और कब्र कितनी महंगी है पता है आपको, यहां तो कब्रें सस्ती हैं, फॉरेन कंट्रीज में कब्रें बहुत ज्यादा महंगी हैं, इतनी महंगी हैं कि बाज दफा गैर मुस्लिमों में गरीब लोग मैयत को दफनाए बगैर जलाने पर खुश होते हैं। मैंने वहां वो चूल्हे देखे हैं जिसमें मैयत को बॉडी दाखिल की, इतना टेम्परेचर ज्यादा होता है कि 2 मिनट में उसके कबाब बन के वापस, कबाब भी नहीं राख बन के वापस 2 मिनट लगते हैं। तो आप बताओ, इंसानी अकल कहती है कि कोई अपनी माँ को इस तरह से जला दे, बाप को इस तरह से जला दे, बताओ ना। लेकिन जब लोगों ने ये करना शुरू किया तो अकल ने मानना, आप लोग बोलेंगे तो बात चलेगी आगे, जब लोगों ने जलाना शुरू कर दिया तो पब्लिक ने मानना भी शुरू कर दिया। आप यूट्यूब पे देखें, पारसी लोग अपने लवाहिकीन गिद्धों को खिलाते हैं, यूट्यूब पे जाके देखें आप, किसको खिलाते हैं, गिद्धों को। अकली दलील बड़ी मजबूत, और कैसे खिलाते हैं मैंने तो वो वीडियोस देखी हैं। और मैं जब ये हांगकांग गया तो वहां मैंने कहा यार कोई पारसी वारसी हो, मुझे दिखाओ ये मैयत के साथ करते क्या है। अभी शौक है ना थोड़ा सा देखने का कि हो क्या रहा है मार्केट में। जब तक आप दूसरे मजहब को देखते नहीं हो ना, उसको इस्लाम से कंपेयर करने का आपको मौका मिलता नहीं है। आपको इस्लाम की खूबी, हम तो एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, चारों तरफ हमारे क्या है, मुसलमान हैं, हमें ना शराब नजर आती है, ना कोई हमें तवाइफ खाने अल्हम्दुलिल्लाह नजर आते हैं, तो हमें तो ये चीजें नजर नहीं आती। तो इस्लाम की कदर जब होगी, जब ऐसे कल्चर में देखोगे ये हो क्या रहा है, फिर पता चलता है यार अल्लाह ने हमें कैसे पाकीज़ा माहौल में पैदा किया। अंडा मोड़ की कदर पैदा होगी, अंडा मोड़ की, सही है ना, कदर पैदा होगी यार जो भी है। लेकिन बाप का एहतराम है, माँ का एहतराम है, रिश्तेदार आपस में मोहब्बतों से मिलते हैं, भाई बहनों का एक रिश्ता है, खाला भांजे भतीजी भांजी
फूफी, ये सब रिश्ते हैं आपस में। तो खैर जल्दी से मैं अर्ज कर रहा था कि वो क्या करते हैं, आग से जला देते हैं। हाँ, वो YouTube की बात कर रहा था कि आप पारसियों को, मैंने बड़ी कोशिश की कहीं जाके देखूं, मार्केट में मिले नहीं। हमने कहा YouTube ऐसी चीजें जो डालो लिख के आ जाता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि सबसे ज्यादा गुमराह कौन होता है, जो अल्लाह को सिरे से मानते ही नहीं। ये तो इतनी कंफ्यूजन में इनकी लाइफ है, इनको तो यही नहीं पता कि मरने के बाद कब्र में जाना मुनासिब रहेगा या किसी चूल्हे के नीचे जल के राख बनना मुनासिब रहेगा या गिद्धों को खिलाना ऐन मुनासिब। तो YouTube पे आप सर्च करें पारसी क्या करते हैं, मैंने देखा है। मैयत आएगी ना, एक आदमी का बाप की मैयत है, माँ की मैयत, कितना मुकद्दस रिश्ता है यार बाप का। जब तक आपकी निगाहों के सामने है तो इस्लाम क्या कहता है, उसकी ताजीम करो। कहता है कि नहीं कहता? ये नहीं देखो कि कब्र में कीड़ों ने खाना है तो छोड़ो अब क्या करना, सड़ने, ना 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 ना। गुस्ल दो उसे, बहुत इज्जत एहतराम के साथ सामने रखकर जनाजा पढ़ो, तकबीरात कहो, 4 दफा उस पे अल्लाहू अकबर कहो, सामने रख के जनाजा होता है। फिर कैसे कंधा देने के तरीके बताए, इस तरह से पैदल ले जाना कब्रिस्तान, ये ज्यादा सवाब है मैयत को बजाय गाड़ी में बस में ले जाने के, बशर्ते कि कब्रिस्तान बहुत दूर ना हो। पैदल को फुक़हा कहते हैं इसमें मैयत का इकराम ज्यादा है। अगर कब्रिस्तान बहुत ज्यादा दूर ना हो तो बजाय बस में ले जाने के कैसे ले जाना चाहिए, पैदल। इसमें इकराम है ना कि सब उसको कंधा दे रहे हैं, इज्जत के साथ लेके जा रहे हैं। फिर वहां रखा जाता है, इज्जत के साथ उसको कब्र में उतारा जाता है। कोशिश की जाती है मिट्टी इसके ऊपर ना पड़े, सिले रखी जाती हैं। फिर सब अपना हिस्सा डालते हैं कि भाई कम से कम हम भी मिट्टी डालने में हमारा हाथ भी पड़ जाए। फिर नबी ने हुक्म दिया जब दफन कर दो उसके करीब खड़े होकर उसके लिए दुआ करो। इसके बाद फिर घर आओ, उसके बाद सारी जिंदगी उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहो। उसके लिए कुआं भी खुदवा सकते हो, उसके लिए कोई भी यतीम खाना खुलवाओ कि मेरे वालिद साहब को इसका सवाब पहुंचे। एक रिश्ता कायम कर दिया ना, हमारे पास रास्ता है। मुल्हिद के पास कोई रास्ता बोलो नहीं कि मरने के बाद इसका करना क्या है, कुछ नहीं पता। इसका करना क्या कह रहे, इत्तेफाक से जब वजूद में आया है तो इत्तेफाक से मर भी, बोलो ना मर भी। हमारे पास तो तसल्ली के जुमले भी हैं कि यार अल्लाह की अमानत ही, अल्लाह ने पैदा भी अल्लाह ने किया, उठाया भी किसने, अल्लाह ने। इनके यहाँ तो पैदा भी एक इत्तेफाक से हो गया, मरा भी एक भाई मर गया है, भाई मर गया। कोई तसल्ली, कोई मगफिरत की दुआ, कुछ भी नहीं। अब मरने के बाद करें क्या, कोई रास्ता नहीं, करना क्या है इसका। वो कभी पारसियों को देखेगा YouTube में कि यार वो उससे मुतासिर होगा, तो वो पारसी क्या करते हैं, अपनी अब्बा अम्मा बुजुर्ग रिश्तों को ना, वो अपने जो पंडित है ना, उनके जो भी पंडित का लफ्ज है, मैंने सुना है पंडित, ये संस्कृत लफ्ज है, क्या लफ्ज है यार वो, संस्कृत लफ्ज है, पता नहीं, वो मास्टर साहब कह रहे थे। अल्फाज में मुझसे कभी कभार गलती होती है। तो वो उनके जो पंडित होते हैं ना, पंडित हिंदुओं के होते हैं, पारसियों के नहीं होते, लेकिन मुझे नहीं पता पारसियों के बुजुर्गों को क्या कहते हैं, फिलहाल हम पंडित ही लगा देते हैं उनके ऊपर। तो वो क्या करते हैं, छत पे लाके रखी जाती है लाश, उसके बाद वो मैयत के गोश्त काटते हैं। गिद्धों को पहले से पता होता है कि हमारे लिए खुराक आई है। आप देखें YouTube पे गिद्ध पहले से आ जाएंगे, क्योंकि वो आदी हो गए हैं ना कि हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई आने वाला है। तो गिद्ध पहले से ही जो है ना, वो खुशबू आ जाती है उनको, खुशबू या बदबू जो भी है वो आ जाती है। सारे गिद्ध ऐसे बाकायदा परवाजें जैसे उतर रही होती है ना, दुबई में आप देखें एयरपोर्ट पे ऐसे एक जहाज के पीछे जहाज लगा हुआ होता है ऐसे, और गिद्ध उतरता भी बिल्कुल जहाज के स्टाइल में, आपने देखा होगा। उड़ता भी ऐसे ही है, पहले दौड़ता है रनवे पे, गिद्ध बहुत भारी है, पहले उस उड़ने के लिए थोड़ा चलना पड़ता है उसको, दौड़ता है, फिर दौड़ते दौड़ते एकदम उड़ता है वो। उतरता भी ऐसे ही, बिल्कुल स्टाइल वही होता है। तो ऐसे गिद्ध जैसे दुबई में फ्लाइटें के पीछे गिद्ध आते हैं, छत पे उतरते हैं, और वो जो इनके जो भी मजहबी रहनुमा होते हैं वो क्या करते हैं, छुरी लेके खड़े हुए होते हैं। अब किसी की वालदा है, किसी की बहन है, किसी के मामू है, किसी के चाचू हैं, कोई भी है, वो क्या करता है, ये पिंडलियों का गोश्त यहां से, जैसे बिल्कुल बकरे की चांपे अलग की जाती है ना, इस तरह से सीने से गोश्त, पिंडलियों का गोश्त सब काट काट के टुकड़े बना के किसको फेंकते हैं, गिद्धों को खिलाते हैं वो। और गिद्ध खा खा के फिर हड्डियां छोड़ देते हैं, बिल्कुल हड्डियां साफ करके खत्म, नामो निशान खत्म मैयत का। दलील उनके पास भी है इस तौहीन की, इस बेइज्जती की, इस बेइकरामी की। दलील क्या है कि कब्र में भी किसने खाना है, बोलो ना, कीड़ों ने ही खाना है। तो गिद्ध खा ले, कीड़े खा ले, एक ही बात है। बल्कि जब कीड़े खाते हैं तो तौहीन ज्यादा होती है, इसलिए कि जब कीड़े खाएंगे तो मैयत फटेगी, फूलेगी, सड़ेगी, आंखें बाहर निकलेंगी, उसको खत्म होने में टाइम बहुत लगेगा। और यहाँ 1 घंटे में सफा चट, कोई बेइकरामी नहीं, कोई तौहीन नहीं। तो मेरे भाई इससे पता चलता है अकल जो है ना, अकल
बहुत से मकामात पे बड़ी ठोकर खाती है। अकल बहुत से मकामात पे आपको सही गाइड नहीं करती, हमें गाइडेंस की जरूरत है। कोई हो जो हमें बताए, उंगली पकड़ के सिखाए, हमें बताए। जैसे बच्चा अकल इस्तेमाल करता है, ठोकरें खाता है, माँ बाप उंगली पकड़ के बात बात पे उसको टोकते हैं, समझाते हैं, ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना, बड़ों से ऐसे बात करनी है, छोटों से ऐसे बात करनी है। ये अब्बा है, इनको पापा बोल रहे हैं, इनको वसीम भाई नहीं बोलना। देखो बच्चे को अगर ये ना सिखाओ, माँ ना सिखाएं कि इनको पापा बोलना है, अब्बू बोलना है, डैडी बोलना है, तो बच्चा आपको क्या बोलेगा? सत्तार भाई। हकीकत है बोलेगा वसीम भाई खैरियत से हो, वो ये करेगा। वो तो यही सुन रहे हैं, वो तो यही सुन रहे हैं। बच्चे करते भी हैं ऐसा बाज दफा, तो वो अम्मी को कुछ भी बोल देगा, नाम ले देगा उसको। तो माएं सिखाती है ना, बाप सिखा। तो ऐसे ही अल्लाह हमें इंसान को सिखाता है कि दफनाना ऐसे है, पैदाइश के वक्त ये करना है। तो एक एक चीज में गाइडेंस की जरूरत है। हमारे पास रास्ता है, तो जो अल्लाह का इनकार करते हैं, सिरे से रास्ता बोलो ना है ही, तो वो चांपे बना के खा जाए। तो वो इसी वजह से मैं ये जो बात लेके चला था, उनकी नजर में आंखें किसी को दे देना वो अकली लिहाज से ठीक है, कल वो गोश्त भी तकसीम करना शुरू कर देंगे, लेकिन उलमा इसकी इजाजत बोलो भाई नहीं देते। कहते हैं मैयत इसी तरह काबिल ताजीम है जैसे जिंदा आदमी। इसलिए हम कहते हैं आंख पहले से अगर कोई रखी भी हो ना हॉस्पिटल में, जो गैर मुस्लिम तो नहीं, वो तो डोनेट कर देते हैं, तो अब वो कर ही दी है, वो तो जाया हो रही है ना भाई, उसने तो कर दी ना, और उनका मजहब भी है। तो इसलिए कहते हैं अगर कोई है, कोई एक झिल्ली सिल्ली लगती है, पूरी आंख नहीं लगती, तो ठीक है लगा लो, लेकिन खुद से बाकायदा जैसे मरता हुआ आदमी कुछ ना मिले तो इंसानी गोश्त मिले तो खा के पेट भर लो ना। वो तो मजबूरी में सूअर खाना भी जायज है, लेकिन पहले से सूअर पैक करके रखना कि यार क्या पता जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आए कि मैं मरने लगूं। तो ऐसे ही बाकायदा पहले से आंखें निकाल के डोनेट कर देना कि किसी को जरूरत पड़ सकती है उसके लगा देना, इसकी इस्लाम में इजाजत बोलो भाई नहीं है। और ये याद रखो, बहुत से लोग कहते हैं लावारिस लाशों के साथ ये जायज है। याद रखो इस्लाम में कोई लाश लावारिस नहीं है, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। एक इंजीनियर साहब है, वो बहुत दिनों से मोहब्बत की बात नहीं हुई उनके बारे में, वो एक दफा ये जो मरते वक्त आज़ाद डोनेट करते हैं ना, इसकी बहस कह रहे थे कि लावारिस लाशों के साथ ऐसा होता है, आम लाशों के साथ ऐसा नहीं होता। वो तो जाहिर है किसी का बेटा है, वो अपने बाप की को क्यों देगा, उसकी आंखें और गुर्दे मुर्दे क्यों निकालेगा मरने के बाद, तो ये लावारिस लाशों के साथ होता है, लिहाजा गोया कि ये क्या है जायज है। तो वही है कि अधूरा इल्म खतरनाक होता है। इस्लाम में कोई लाश लावारिस बोलो नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसके सब है। हदीस में आता है सुल्तान वली मल्ला वली लहा मल्ला वली लहू, जिसका कोई वली नहीं है ना तो हुकूमत उसकी वली है। हुकूमत बाप बन के उसकी वही खिदमत करेगी जो हकीकी बाप कर रहा होता है अपनी औलाद की। कोई लाश अगर कचरे में खुदा न ख्वास्ता पड़ी भी मिली है, कोई नहीं मिल रहा, तो फिर सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है इसको वही प्रोटोकॉल दें जो अपने बेटे को, अपने भाई को, अपनी माँ को प्रोटोकॉल देते हैं। बूढ़ा है तो सबका बाप है वो, जवान है तो सबका बेटा है वो, बल्कि उसकी ताजीम दूसरे से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी ताजीम करने वाला कोई है नहीं, कोई इसका मुहाफिज नहीं है। तो इसलिए इस्लाम ने कहा सब मुहाफिज है उसके, तो अब सब ने उसकी लाश की हिफाजत करनी है। एक साहब ने यहाँ मोहम्मद शाह के कब्रिस्तान में अपनी वालदा को दफन किया, 3 दिन तक कब्र की पहरेदारी करते रहे। मैंने कहा खैरियत, आप 3 दिन से इधर ही आना जाना है? कहते हैं भाई आजकल ताजा ताजा लाशें ना गोरकन निकाल के बेच देते हैं डॉक्टरों को। क्या करते हैं? डॉक्टरों को बेच देते। तो मैं अपनी माँ की कब्र की हिफाजत कर रहा हूँ। उसने कोई उलमा से दलील नहीं सुनी थी, उसको पता था कि माँ काबिले ताजीम है, वो इस लायक नहीं है कि उठा के उसके फेफड़े फला हॉस्पिटल में दे दो, उसके गुर्दे फला को दे दो, फला को दे दो, या लाश जो है ना वो तजर्बे करने के लिए फला हॉस्पिटल को दे दो। साइंसी तरक्की ही दुनिया में सब कुछ नहीं है। ये सारे तजर्बे जानवरों पे भी हो सकते हैं। जानवरों को इजाजत दी के बारे में इजाजत दी अल्लाह ने कि भी जानवरों पे तजर्बे करो, इंसानों पे तजर्बे बोलो ना भाई नहीं। एक डॉक्टर मुझसे भीड़ पड़े, कहने लगे मुफ्ती साहब अगर हम इंसानी लाशों पे मेडिकल साइंस का इल्म नहीं सीखेंगे तो हम तो तरक्की में पीछे रह जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी जबरदस्त दलील है, इस दलील के पेश नजर आप सबसे पहले अपने अब्बा को तैयार करें। जैसे ही वालिद साहब का इंतकाल हो फौरन अपने हॉस्पिटल में वालिद साहब की लाश रखें कि आइंदा अगर किडनी का सिस्टम समझना है तो मेरे अब्बा की लाश पे, ठीक है ना, लंग्स का सेटअप देखना है तो मेरे अब्बा, मैंने कहा उस पे करो। अपने अब्बा की तो तौहीन बर्दाश्त नहीं है। तो क्या वही बात है ना कि लावारिस लाशों के साथ कर, भाई लावारिस कोई भी नहीं है। अगर कोई बूढ़ा आदमी जिसका कोई नहीं है तो हम सब का बाप है, फिर वो हम सब ने क्या कर रहे हैं, बाप जैसा प्रोटोकॉल देना है। इंसान लावारिस नहीं होता। आपको पता है फुकाहा ने मसला लिखा, इस पर इजमा है कि अगर कोई लाश मिले ना
कहीं भी कोई कातिल नहीं मिल रहा उसका, तो मकतूल के वारिसों को फिर भी दियत देनी पड़ेगी, क्योंकि मकतूल के वारिस जो है ना, उनका बंदा कत्ल हो गया, कातिल मिल नहीं रहा। तो उस महल्ले के जो करीब तरीन लोग हैं ना, करीब तरीन, उनमें से 50 घरों के ऊपर दियत आती है कि तुम्हारे महल्ले से लाश मिली है तो तुम्हें बेदार मगज होना चाहिए था, तुम्हें पता तो होना चाहिए कौन तुम्हारे इलाके में लाश फेंके जा रहा है। तो 50 अफराद से पहले कसम ली जाएगी कि इनमें से किसी ने कत्ल तो नहीं किया। अगर कोई इकरार करने के मैंने कत्ल किया तो उसको लटकाया जाएगा। अगर कोई भी इकरार ना करे तो 50 पे दियत आएगी। नहीं आ रही बात समझ में? 50 के 50 उसकी दियत सब में डिवाइड होगी और मकतूल के वारिस को वो खून बहा अदा करेंगे, क्योंकि फुकहा कहते हैं कि इस्लाम में कोई भी लाश हदर नहीं है। हदर का मतलब होता है कि बस वो मर गया और उसका कोई सजा ही नहीं और कोई मुआवजा भी नहीं है, ऐसे नहीं होता, फ्री में नहीं होता। मरा है तो मकतूल के वारिसों का नुकसान हुआ है, उसकी तलाफी अदा करनी है, उनको पैसे मिलेंगे। कातिल नहीं मिल रहा तो कोई भी नहीं मिल रहा, तो ये अहले महल्ला जहां से लाश मिली है उनमें 50 इसलिए कि सब पे थोड़ी थोड़ी डिवाइड हो जाए। तो दलील क्या है? इंसानी जान, इसका खून हदर, हदर का मतलब होता है फ्री, मुफ्त नहीं होता ये। तो ये चूंकि इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं है ना, तो कभी लाश वहां से मिल रही है, कभी वहां से। जब ये दियत का कानून नाफिज हो जाए तो हर महल्ला निगरानी करेगा, भाई लाश अगर हमारे महल्ले से मिली तो बल्ली किस पर आएगी? हम पर आएगी, ठीक है ना? वो खुद निगरानी करेंगे। तो इस्लाम तो इतना प्रोटोकॉल दे रहा है इंसानी जान को, इंसानी लाश को। आपके पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है। कहां से कहां बात जा रही है, मौजू सारा चेंज हो रहा है। क्या बात कर रहा था मैं? वो जो वहां से कटिंग हुई थी, चांपे वहां पे निकाल के उन्होंने गिद्ध को खिलाई थी ना, यहां तक पहुंचे थे हम। अबे अभी जो बात चल रही थी यार, है क्या कह रहा था? ना मानने वालों की किस्में, वो तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ जो बात कहां से आई थी? पारसियों पे बात आई थी, वो गिद्धों को खिलाते हैं, तो खैर पता नहीं, चलो जो भी चल रहा था, वापस असल की तरफ आते हैं। तो जिनके पास रास्ता नहीं है ना, उनमें सबसे बड़े गुमराह कौन है? जो अल्लाह को सिरे से मानते नहीं। उनके पास तो कमबख्तों के पास कख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। चील को खिला दो, कौओं को खिला दो, मैयत को। इत्तेफाक किया तो इत्तेफाक तो आपको पता है इत्तेफाक होता है। ये बाप के कायल भी नहीं है। अगर कोई जिना से बच्चा पैदा होता है तो वो भी वही है, तो जिना से बच्चा पैदा हुआ उसका अब्बा है नहीं। इतने कंफ्यूज हैं कि अब उन्होंने जो जिना से बच्चा पैदा होता है ना, तो गर्लफ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड जिससे बच्चा वो उसको बाप करार दे दिया है। उसको क्या करार दे दिया है? बाप। सवाल पैदा होता है फिर लीगल और इलीगल में फर्क क्या हुआ? मैरिड के तकल्लुफ की क्या जरूरत? इसका भी कोई जवाब बोलो। यानी एक झूठ बोलता है तो 100, कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? 100। बिल्कुल यूरोप अभी इस तरफ चल पड़ा है, गलत पे गलत करता चला जा रहा है, गलत पे गलत। मजहब को निकाला ना अपनी डिक्शनरी से, तो मजहब निकला तो जिना अलाउ हो गया, क्योंकि मजहब रोकता है ना बदकारी से। तब जिना अलाउ हो गया तो फिर वलदु जिना, बच्चे बेतहाशा। पहले उन्होंने बहुत कोशिश की इसको रोके, नहीं रुके। अब क्या करें, ज्यादा, बहुत से मुल्कों में तो ज्यादा वलदु जिना है और हलाल कम है। अब क्या करें यार, हमारे तो मुल्क की आबादी ज्यादातर इल्लीगल बच्चों की है, तो इल्लीगल को क्या कर दो लीगल। ये बिल्कुल वही 50-50 वाला केस है कि डॉक्यूमेंट में एक खातून को गलती से बेवा लिख दिया, वो अपने मियाँ को ले आई कि मैं तो शादीशुदा हूं, मैरिड हूं, ये मेरा मियाँ, इसको लेकर आई हूं। यार मैंने बचपन में जो प्रोग्राम देखे हैं ना, उनका अब बड़ा फायदा हो रहा है सही है ना, अब बड़ा फायदा हो रहा है, मौके पे याद आते हैं वो। तो वो ना 50-50 था। अच्छा, इन चीजों को भी हम गुनाह समझ के देखते थे, बच्चे थे और तौबा करते थे, अल्लाह ड्रामा देख लिया, माफ फरमा दे। अब तो मैं कहता हूं जो कुछ आ रहा है ना टीवी पे, तो हम कितने नेक थे भाई। अब तो मैं कहता हूं इसमें क्या गुनाह वाली बात थी, बस यही था कि टीवी में आ रहा है इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है ना इसमें। ना कोई बेपर्दगी है, ना कोई इसमें कोई फुहश चीज है, ना कोई झूठ भी नहीं है, बस एक मिजा है। तो अब कहता हूं कितना फर्क पड़ गया है ना जमाने में। उस वक्त हमारे वाले साहब ये चीजें भी नहीं देखने देते थे ना, तो हमने फिर इन चीजों से भी तौबा कर ली थी। अल्लाह माफ फरमा दे, हम तौबा करते हैं, 50-50 भी नहीं देखेंगे। अब मैं सोचता हूँ यार, क्या तकवे का महयार उस जमाने में क्या था। अब तो जो 50-50 देख रहा है ना, उससे दम करवाओ जाके। इतना नेक है भाई कि एंटरटेनमेंट के लिए किसका सहारा ले रहा है? मोइन अख्तर के प्रोग्राम देखता है बस, सीधे साधे से। तो ये तो बहुत नेक है, इतना नेक आदमी है कि एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर रहा है। अब तो लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए पता नहीं क्या क्या पाला हुआ है भाई, वो इन चीजों से एंटरटेन नहीं होते। अब तो उनको बहुत कुछ चाहिए, ड्रामे वरामे में बड़े फुहश किस्म के फिल्में, ये जब तक ना हो इनको तसल्ली नहीं होती। तो वो 50-50 में वो खातून लेकर आई अपने मियाँ को, कहने लगी शनाख्ती कार्ड ऑफिस में कि ये आपने मेरे मियाँ को लिख दिया है बेवा, ये तो मेरा मियाँ तो जिंदा है। तब उसमें दिखाया गवर्नमेंट के
جو ادارے ہوتے ہیں उनकी बदहाली दिखाते थे, उसमें थोड़ा मुबालगा करते थे. तो उसने कहा कि अच्छा ये गलती हो गई है, तो कोई बात नहीं, बंदूक निकाली, मियाँ को उठा करके गोली मारते. उसने कहा ये क्या किया, बेवा हो गई ना, बस सही होगी. बज़बान हाल ये बताया कि यार अब डॉक्यूमेंट में जाके उसको करेक्शन करना है, उसमें टाइम लगेगा. पुरानी फाइलें, वो गवर्नमेंट के इदारों में पहले कंप्यूटराइज सिस्टम भी नहीं था, वो फाइलें तलाश करने में इतना टाइम लगता था. एक फाइल निकालो तो 20 गिरती थी नीचे आके, फिर कागज इधर हो गया उधर हो गया. तो यार अब इतनी मुसीबत, फिर उसमें इतने गवाह चाहिए, ये छोड़ो, ये वैसे ही मरने वाला है थोड़े दिनों में. था बिल्कुल यही हाल कहाँ है, मगरिबी कल्चर का है कि अब वो अपने सिस्टम को सही तो नहीं कर सकते. उन्होंने मजहब के खिलाफ अपनी कौम को बगावत पे इतना उकसाया कि मजहब नहीं, बस अकल 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 अकल, मजहब को निकालो 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 अपनी डिक्शनरी से, हुकूमत से निकालो. इतना निकाल के कौम को यहां तक ले आए कि अब हर उल्टी बात को सीधा करने के बजाय उस उल्टी को सीधा करार दे दिया जाता है. ठीक है ना. ये ऐसे ही है जैसे आपको किसी ने जिम्मे में लगाया कि इस जलेबी को सीधा करो. आपने पहले तो डिक्शनरी में सीधे की और स्ट्रेट की और खत मुस्तकीम की डेफिनेशन देखी. खत मुस्तकीम की आपने जो डेफिनेशन देखी तो आपने कहा वो सीधे खत को कहते हैं, सीधी लकीर को कहते हैं. तो आपने कहा यार बॉस ने मेरे जिम्मे लगाया कि जलेबी को क्या करना है, सीधा. आप घंटा हो गया आपसे जलेबी सीधी, जलेबी की तो डेफिनेशन ही है. तो आपने क्या किया, बड़ी चालाकी से डिक्शनरी में बाइटो लगा के खत मुस्तकीम की तारीफ क्या कर दी, बदल दी. आपने कहा खत मुस्तकीम उसे कहते हैं जो गोल गोल घूमा हुआ हो, जो क्या हो, ऐसे यूं 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 करके घूमा हुआ और किसी के बाप से भी सीधा ना हो. ये भी आपने हाशिए में बढ़ा दिया. ठीक, ये बिल्कुल यही मगरिब में हो रहा है. जो गैर मुस्लिम है ना वो 100% यही हरकत कर रहे हैं. किसी के बाप में भी उसको सीधा करने का दम ना हो. इट इज कॉल्ड खत मुस्तकीम. राइट क्या कहते हैं, स्ट्रेट. खत जो है ना, खत को इंग्लिश में एक तो वो लेटर होता है ना, लाइन कहते हैं आप इसको, सीधी लाइन. तो यही काम हुआ है कि उन्होंने पहले मुआशरे को ब्रॉड माइंडेड बनाया कि भाई खातून की मर्जी है जैसा चाहिए. यूरोप में जो आज बेहयाई है वो 100 साल पहले नहीं थी. मैं थाईलैंड गया ना, वहां लोगों ने बताया, वहां के मकामी लोगों में, कि जब तक गोरा थाईलैंड में नहीं आया था, आज से 100 साल पहले हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पर्दा था. अभी तक उनके यहाँ वो मिसालें लिखी हुई है उनकी जबान में ना, जो झोपड़ियां बनी हुई जबान होती है. थाई और चाइनीज जबान ऐसे जैसे झोंपड़ी, कुर्सियां उल्टी हुई, मेजें 2-4 उल्टी पड़ी हुई हैं. मुझे तो ऐसा लगता था यार ये क्यों चीजें उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं. तो वो उनकी लैंग्वेज है. तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक लिखा होता है कि औरत घर की 4 दीवारी में. औरत अच्छी कहाँ है, ये तो गोरों ने आगे उनका कल्चर बर्बाद कर दिए. तो आहिस्ता आहिस्ता गलत चीज. पहले इनके लिबरल लोगों ने कहा यार ये औरत के पूरे कपड़े, स्कार्फ, दुपट्टा क्या है यार, इतना कोई सारे कोई, ये माहौल को ऐसा आजाद कर दो ताकि ये लोगों में ये हिस्सी खत्म हो जाए. तो जब यहां तक आए हैं तो फिर आंख मटक के शुरू. औरतों में फिर बेवफाई. जब पर्दा खत्म हो गया तो अपने मियाँ के अलावा बहुत से लोगों से उनकी सलाम दुआ, और फिर मियाओं की दफ्तरों में बहुत सी औरतों से सलाम दुआ. होते होते फैमिली सिस्टम. फिर मियाओं को जब गर्लफ्रेंड इतनी सस्ते रेट पे मिलने लगी तो शादियों की टेंशन आहिस्ता आहिस्ता, बोलो भाई, खत्म. और फिर फैमिली प्लानिंग ने आके और बेड़ा गर्क कर दिया कि बच्चे 2 ही अच्छे. उन्होंने कहा जब 2 ही अच्छे तो 50 साल में भी हो सकते हैं. वो हमारे यहाँ तो जल्दी इसलिए भी करते हैं ना कि यार अभी से स्पीड होगी तो 45-50 तक इतने हो जाएंगे हमारे पास. सही है ना. बाज लोग अब हमारे यहाँ भी ज्यादातर उसी माहौल से मुतासिर हो गए हैं. जल्द शादी की एक वजह यहाँ ये भी है कि यार औलाद जवानी में जवान हो जाए, तो जाहिर है बुढ़ापे में थोड़ी बच्चे होंगे. अभी पाल लेंगे, जवानी में ही पाल पोस के बड़ा कर देंगे, अभी आसान है, बुढ़ापे में. तो ये सारी चीजें, लेकिन सबके अगेंस्ट चलाया तो नतीजा क्या निकला जो आपके सामने है. वो ये कल्चर चाहते नहीं थे, कतन नहीं चाहते थे. वो ये नहीं चाहते थे कि आबादी इतनी घट जाए कि अब हम बढ़ाने पर आए तो बढ़े ही नहीं. अब कौम बढ़ने के लिए तैयार नहीं. वो कह रहे यार ये हम क्यों टेंशन पालें, जब बच्चे पहले 2 अच्छे थे 100 साल पहले, तो आज भी 2 ही अच्छे हैं. अब गवर्नमेंट उनकी कह रही है बढ़ाओ बढ़ाओ, कह रहे भाई क्यों बढ़ाएं, क्यों बढ़ाएं. जब औरत की सेहत कम बच्चों में है तो गवर्नमेंट के कहने पे 8 क्यों पैदा करें हम. तो वो नहीं मान रहे. वहां की गवर्नमेंट इतनी बेजार आ चुकी है ना, इतनी बेजार. ये तो हम और आप यहाँ बैठे हैं, आप जरा उन मुल्कों के सुदूर सदरों से, वजीर आजमों से जाके पूछें तो पता चलेगा. वहां के माहिरीन सर जोड़ के बैठे हुए हैं. लेकिन कमाल की बात यह कि वो कौम को तो तरगीब दे रहे हैं, खुद अपने 2 से ज्यादा पैदा करने के लिए वो भी तैयार नहीं है कि हम क्यों टेंशन लें. और इस्लाम ने हमें क्या रास्ता दिया, यह गिफ्ट है औलाद, ये टेंशन नहीं है, ये क्या है, गिफ्ट है. बच्चा घर में होता है, एक तोहफा है, घर में रौनक है. खैर, तो अब क्या मसला हुआ कि उनके यहां पहले बेपर्दगी आई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम आया,
होते होते वलदुज़िना बच्चे पैदा होना शुरू। तो उनके आप पुराने अखबार देखें ना, 60-70 साल पुराने, मैंने अपनी किताब में उनके अखबारों के, लंदन के अखबारों के हवाले दिए हैं, जो मेरी किताब है उसमें हवाले दिए हैं। वो परेशान है कि इल्लीगल बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, इनको रोको, लेकिन कानून साजी के बावजूद भी वो बच्चे रुके नहीं। तो फिर मजबूर होके उन्होंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम को क्या कर दिया, लीगल। वही है कि जलेबी अब सीधी नहीं हो रही, तो सीधी की तारीफ क्या कर दी, सीधी उसे कहते हैं जो यूं 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 हो, और किसी का बाप भी उसको सीधा ना कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कैरेक्टर, अच्छा किरदार, अच्छा मुआशरा, इसे नहीं कहते कि आपके यहाँ इल्लीगल बच्चे बहुत हैं। ये इल्लीगल है ही नहीं, ये तो कानून की सफा नंबर, कानून की फला किताब के सफा नंबर फला पे लिखा हुआ है कि सारे लीगल हैं। इल्लीगल क्या होता है, बस मर्द और औरत का मिलाप हुआ तो बच्चा लीगल है। इल्लीगल वो होगा जो ब्लूटूथ से पैदा हुआ हो, वाईफाई से पैदा हुआ हो, ठीक है ना, या क्लोनिंग करके पैदा हो गया। ये तो बच्चे बाकायदा प्रोसेस वही है जो नेचुरल प्रोसेस होता है। अब ये नहीं पता वो गधे घोड़ों का भी तो नेचुरल होता है। तुम इंसान हो, तुम गधे घोड़े थोड़ी हो। इस सिर्फ नेचुरल होना काफी थोड़ी है, मुहज्जब होना भी जरूरी है। समझ में आ रही है बात की नहीं है? तहजीब इंसान को जानवरों से मुमताज करती है। खैर नतीजा क्या निकला, फिर मजहब जब गया तो बूढ़े माँ बाप को लिफ्ट कराना लोगों ने, बोलो ना, छोड़ दिया। जब लिफ्ट कराना छोड़ दिया तो ये भी लीगल है भाई। गवर्नमेंट ने जब देखा कि लोग फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, बूढ़े बापों को, साइंटिस्ट होगा, चीजें एक से एक इजाद कर रहा है, लेकिन बूढ़े बाप को कहां डाला हुआ है, फुटपाथ पे। पढ़े लिखे बहुत हैं, सब कुछ है, रिश्ते क्या हो गए, इंसानियत क्या हो गई, खत्म। क्योंकि अब हर आदमी क्या इस्तेमाल कर रहा है, अपनी खोपड़ी, अकल। वो कह रहे मेरे पेरेंट्स ने तो जवानी की जिंदगी गुजार दी, अय्याशी कर ली, अब मुझे तो अय्याशी करने देना, तो वो अब अय्याशी करेगा। तो उन्होंने अब्बा अम्मा को ओल्ड हाउस, तो ओल्ड हाउस क्या हो गए, लीगल। आपने भी दाखिल किया अब्बा को, फलाने भी दाखिल किया, तो अब ये कल्चर का हिस्सा बन गई ये चीज। फिर जिना होते 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 लड़कों से बदफेली नहीं थी उस कौम में, ये चीज इल्लीगल थी, बुरी थी। लेकिन जब ये काम बहुत ज्यादा होने लगा कि लड़कों से बदफेली भी शुरू हो गई, तो उनके माहिरीन को सर जोड़ के बैठना चाहिए था कि यार अब हम क्या हो रहे हैं, बेलगाम। हमने जो 100 साल पहले फैसला किया था ना कि मजहब से डिक्शनरी से निकालो, ये फैसला हमारा गलत था। तरक्की तो हो गई मगर तहजीब कहां चली गई। अभी तो पिछले हफ्ते सिखाया था आप लोगों को, इंसान इंसान नहीं रहा, ये तो जानवरों से बदतर जिंदगी हो गई है इसकी। तो उनको चाहिए था कि यार मजहब को लेकर आओ। हाँ, मजहब के जो साइड इफेक्ट हो रहे थे वो मजहब की गलत तशरीह की वजह से हो रहे थे, तो सही मजहब को लेकर आओ। लेकिन नतीजा क्या निकला, अब मजहब की तरफ तो आ नहीं सकते थे ना, तो वो क्या नतीजा निकला है कि होते 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 लड़कों से बदफेली भी क्या बन गई, लीगल। सब लीगल हो गया। और फिर इतना बड़ा ऐसा लीगल हुआ है कि आप अगर मैरिड हैं तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। आप अगर गैर फितरी तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं मर्दों के जरिए और साबित कर देंगे तो ठक करके आपको वीजा, बोलो भाई, मिल जाए। मुझे ये बात ऐसे पता चली, मेरे पास फोन आते हैं कि हजरत यूरोप के वीजे के लिए ये जरूरी है कि अपने आप को ये शो कर दो, तो क्या, मैंने कहता हूँ खुदा को मानो यार, अल्लाह के बंदे, ये तो अगर गुनाह करते भी हो तो रो, इस पे छुपाओ इस जुर्म को, कोई और बेस पे वीजा ले लो, और नहीं मिलता तो छोड़ो यार, गैरत से बढ़कर कोई चीज है क्या? ये नहीं, क्या कुछ हो रहा है मुआशरे में। तो गलत 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 हो के अब उनके यहाँ मुर्दों की ऐसी की तैसी होने लगी है। पता है आपको, मुर्दे जल रहे हैं, कोई राख बना के रख रहा है, 6-6 महीने लाशें पड़ी रहती हैं पोस्टमार्टम के नाम पे या साइंसी तहकीक के नाम पे। तो सब कुछ, और एक वक्त आएगा, एक बड़े हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने गोरों में टाइम गुजारा, कह रहे हैं आप इंतजार करें, अनकरीब जो महरम रिश्ते हैं ना, उनसे मैरिट का कानून भी पास होने वाला है। वो रिश्ते जो महरम होते हैं, जिनके बारे में हम तस्वुर नहीं कर सकते, उन्होंने कहा ये जा उसी तरफ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। एक मुझे तो ये लफ्ज जबान से निकालते हुए शर्म महसूस हो रही है, लेकिन जो करीब तरीन आपके महरम रिश्ते हैं, जिनकी तरफ आप इस नीयत से देखना गवारा नहीं करते, उन्होंने कहा आप देखेंगे कि बहुत जल्द इन मुल्कों में ये लॉ भी पास हो जाएगा कि मर्द हो औरत हो, कोई भी रिश्ता हो, वो एक दूसरे से अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी कर सकते हैं। ये भी लीगल हो जाएगा। जैसे आज हमसे ये सुना नहीं जा रहा ना, आज गोरों से भी ये लफ्ज नहीं सुना जाता, लेकिन ट्रैक जिस पे वो चल रहे हैं, वो उसका अंजाम, बोलो ना भाई, यही है। तो भाई शुक्र अदा करो तुम्हारे पास इस्लाम। तो मैं कह रहा था सबसे बड़ी गुमराही में कौन होता है, एथियस्ट, जो अल्लाह को नहीं मानता। उसके पास तो सिरे से कख भी नहीं है, वो तो गुमराहियों के। हिंदू फिर भी कोई मरेगा तो कहेगा भगवान तेरी मगफिरत कर दे, उसके पास
दो चार डायलॉग हैं बोलने के लिए, ठीक है ना, रूह वो क्या ना, रेस्ट इन पीस, अमन में इसकी रूह आराम करे, कुछ ना कुछ बोल देगा वो। ईसाई कुछ बोल देगा, ईसाई भी गुस्ल भी देते हैं, कफन भी देते हैं, दफन भी तमीज से करते हैं, क्योंकि हजरत ईसा को मानते हैं, मजहब को फॉलो करते हैं। यहूदी तो और ज्यादा मजहब को फॉलो करते हैं, वो तो जानवर ज़बह करके खाते हैं, मुर्दार नहीं खाते वो। ये जो इनके मजहब में जो मजहबी लोग हैं, निकाह करते हैं, जिना को अलाउ नहीं करते, कर ले तो अलग बात है, लेकिन नजरियाती तौर पर जिना के कायल नहीं है। और आपको पता है ये जो मर्दों से बदफेली का जो कानून पास हुआ, इस पर यहूदियों ने भी एहतजाज किया है कि लीगल नहीं है। पादरियों ने भी एहतजाज किया है कि ये तौरात और इंजील की तालीमात के खिलाफ है। तो अब जैसे जैसे आप मजहब की तरफ आते जाएंगे, आप में गुमराही बोलो कम होती चली जाएगी, खत्म नहीं होगी, कम होगी। लेकिन जब आप इस्लाम में आते हैं ना, तो आप गुमराही से बिल्कुल आजाद। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, अल्लाह कहते हैं हमने तुमको मुअतदिल उम्मत बनाया, हर चीज में बैलेंस। इस्लाम को अगर आप हकीकत में जाके पढ़ोगे, देखोगे, तो खुदा की कसम ऐसा एतदाल है इस्लाम में, हर चीज में एतदाल, हर चीज में। खाने पीने में कितना एतदाल। हिंदुओं ने कहा गोश्त मत खाओ, ये एक तरफ गुलू है कि यार पूरी जिंदगी किस पे गुजारा करो, सब्जी पे। हालांकि हमारी गोश्त हमारी नेचर का हिस्सा है। दूसरी कौम जो गोश्त खाने पे आई, वो कुत्ते भी खा रही है और बिल्ली भी खा रही है, मुर्दार भी खा रही है। कहते हैं ऐसी चीजें खाती है जिसको अंग्रेज को देख के घिन आती है। अंग्रेज बिल्ली नहीं खाते, कुत्ते नहीं खाते, हांगकांग में कुत्ते नहीं खाए जाते। मैंने कहा यार कौम तो वही चाइना वाली है, कुत्ते क्यों नहीं खा रहे? उन्होंने कहा यहाँ अंग्रेज ने हुकूमत की है, ब्रिटिश ने, उन्होंने कुत्तों के खाने को हराम करार दे दिया था कि यार हमारे कंट्री में कुत्ते नहीं खाएंगे। मैंने कहा अंग्रेज ने बड़ा खानदानी काम किया यार। क्यों? इसलिए कि क्रिश्चियन है ना, ईसाई है, तो वो इतना ज्यादा यानी हुदूद से बाहर नहीं निकला कि यार कुत्ते बिल्ली खाना शुरू कर दो। उन्होंने भी कहा यार सूअर की हद तक तो ठीक है, इतना नहीं फ्री हो जाओ कि कुत्ते बिल्ली खाना शुरू कर दो। गोरे नहीं खाते कुत्ते बिल्ली। तो अब क्या है कि एक तरफ इतना इफरात कि जनाब सिर्फ सब्जी खानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना, एक तरफ। दूसरी तरफ गुलू कि खाओ तो सब कुछ ही खा जाओ। इस्लाम ने कितना मुतदिल मजहब दिया हमें कि भाई ऐसा भी नहीं है कि गोश्त नहीं खाना है सारी जिंदगी। तुम्हें गोश्त में बहुत से प्रोटीन है, बहुत सी चीजें ऐसी जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो अल्लाह ने हमारी ग़िज़ा का हिस्सा बनाया गोश्त को। लेकिन तुम इंसान हो, तुम कुत्ते बिल्ली नहीं हो। ये नहीं कि जो मरी हुई चीजें उठा के, जैसे कुत्ता उठा के ले जाता है तुम भी उठा के ले जाओ, ना ना ना। मुर्दार खाने की इजाजत बोलो नहीं है। ज़बा करोगे, उसका खून निकालोगे, उस पे अल्लाह का नाम लोगे। फिर हर जानवर खाने की इजाजत नहीं है। हलाल, अक्सर वो जानवर हलाल हैं जिनके खुर होते हैं और जो जुगाली करते हैं, पत्ते खाते हैं, इनका गोश्त में वो नापाकी नहीं है। दरिंदों के गोश्त में दरिंदगी होती है, नापाकी होती है। हर चीज मेडिकल साइंस नहीं बताएगी आपको, मेडिकल साइंस वही बताएगी प्रोटीन कितने हैं। तहारत, पाकी, नापाकी, ये मेडिकल साइंस का शोबा नहीं है। एथियस हर चीज को मेडिकल साइंस से देख रहा होता है, कहेगा इस खिंजीर में क्या है, खिंजीर में तो इतने प्रोटीन होते हैं, बस वो इस हवाले से देख रहा होगा। तहारत, पाकी, नापाकी, ये उनका टॉपिक ही नहीं है। ये तो तहजीब से इसका ताल्लुक है ना। जैसे कपड़े पहनने के नहीं पहनने, ये डॉक्टर थोड़ी बताएगा, ये तो तहजीब बताती है ना। डॉक्टर तो कहेगा भाई अगर टेम्परेचर है और इतना कि आप बर्दाश्त कर लो तो कपड़े ना भी पहनो तो आपकी सेहत को कोई नुकसान, बल्कि फायदा ही है। धूप लगेगी, डायरेक्ट विटामिन डी मिलेगा आप, तो उसमें विटामिन डी की वैल्यू है। तभी आप देखो बाहर कंट्रीज में जाओ ना, तो समंदर के किनारे सारे ऐसे लेटे हुए होते हैं कपड़े उतार के, क्योंकि हम नहीं लेट सकते, चाहे विटामिन डी सारा ही खत्म हो जाए। हम टीका लगवा लेंगे, भाई तू टीके लगा दे विटामिन डी के हम पब्लिक के सामने ऐसे कैसे? इसलिए कि सब कुछ विटामिन डी थोड़ी है भाई, वो हमें कपड़ों में ही हासिल हो जाता है। कहते हैं सब कुछ विटामिन डी थोड़ी है, तहजीब भी कोई चीज है यार। किसी के सामने ऐसे लेट जाओ, हाँ घर में आप लेट जाए अपनी छत पे जाके, अकेले हो, पब्लिक के सामने थोड़ी ऐसे लेटेगा आदमी। सतर का छुपाना क्या इस्लाम में फर्ज है। तो अब क्या है कि इस्लाम ने बैलेंस, बस मैं बात को खत्म कर रहा हूं, एतदाल लिया, खाने पीने में एतदाल। एक कौम ने क्या किया, बाज आपने मजहबी रहनुमा देखे होंगे जिनके कहीं के भी बाल नहीं होते, जंगल में होते हैं, भवे में मैंने देखे ऐसे। ये जो आईब्रोज है ना, ये भी उन्होंने काटी हुई होती, कहीं के बाल सिरे से है ही नहीं, अजीब से बने हुए होते हैं। और एक मजहब ऐसा है जो कहता है सब जगह के बाल रखो, उनकी बगलों के बाल भी बड़े हुए हैं, दाढ़ी भी नॉन स्टॉप बढ़ती जा रही है, मूछें भी बढ़ती जा रही है, बालों की लठें बनाई हुई हैं। ये अवाम इसको एक्सेप्ट, इंसानी फितरत इसको कबूल नहीं करती। चंद लोग तो कर सकते हैं इस पे अमल। एक दुनिया को लॉ के तौर पे ये सिस्टम पेश करके नहीं दिया जा सकता। इस्लाम ने कितना अच्छा हुक्म दिया, भाई कुछ बाल तो ऐसे हैं जो तुमने बढ़ाने, मर्द और औरत में फर्क है दाढ़ी के बालों में, वो बढ़ाने। हाँ एक वक्त के बाद जाके उसको काट सकते हो,
मूछों के बारे में इस्लाम ने हुक्म दिया कम करनी है, सर के बालों के बारे में औरत को हुक्म दिया बढ़ाने हैं, मर्द को हुक्म दिया तुम्हें इजाजत है, ट्रेंड तुम पे अच्छी लगती है तो ट्रेंड करा लो, बाल रखना चाहो तो बाल रख लो, इजाजत है तुम्हें। बाकी जितने बाल हैं इस्लाम ने जिनका सफाई से ताल्लुक है उनको काटने का हुक्म दिया कि उनको रखने के बाद आपकी नमाज मकबूल नहीं होगी। इससे बेहतर लॉ कोई हो सकता है? इससे बेहतर कोई कानून हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। कुछ मजहबों में ऐसा है नहाते नहीं है, इस्लाम ने नहाने का हुक्म दिया। तो हर चीज में ये जो हर मर्द के अंदर एक ख्वाहिश नफ्स होती है, हर औरत के अंदर भी होती है। कुछ लोगों ने क्या किया, ईसाइयों के पादरियों ने, कि ये ख्वाहिश पूरी होनी नहीं चाहिए, तभी उनके पादरी बहुत से मैरिड लाइफ अनमैरिड जिंदगी गुजारते थे जंगलों में इधर उधर, उसके बड़े साइड इफेक्ट भी हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं गुजारनी नहीं है, और कुछ ने इतनी छूट दे दी कि 10-10 गर्लफ्रेंड है उनकी। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों की नेचर को देखा है कि भाई दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, लिहाजा एक दूसरे से दूर रहने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। लेकिन गधे घोड़ों की तरह नहीं भाई, एक कांटेक्ट होना चाहिए शादी का। और चूंकि मर्द में ख्वाहिश ज्यादा है उसको ज्यादा बीवी रखने की इजाजत दी, औरत में ख्वाहिश कम है उसको एक से ज्यादा मर्द रखने की इजाजत नहीं दी। ये भी नेचर के ऐन मुताबिक है। यूरोप में एक बीवी का कानून है, लेकिन खुद वो लोग कहते हैं, उनकी किताबों के मैंने हवाले पेश किए हैं, कि ये कानून झूठ और धोखे पर मबनी है। मर्द की बीवी एक होती है और उधर नाजायज ताल्लुकात उसने बहुत रखे हुए, इल्ला माशाल्लाह चंद लोगों के अलावा। तो हर चीज में क्या है बोलो भाई, बैलेंस है, हर चीज में एतदाल है, और इबादत में एतदाल है। ना ऐसी इबादत है कि जंगलों में निकल जाओ, ला रहबानियत फिल इस्लाम, हदीस में आता है इस्लाम में रहबानियत नहीं, क्योंकि दुनिया हमारे लिए पैदा की है, इसको छोड़ना थोड़ी हमने। कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह अल्लती अखरज लिइबादिही, नबी इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ने जो जीनत पैदा की अपने बंदों के लिए, इसको कौन है जो हराम कर दे। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा जूता अच्छा हो, क्या ये तकब्बुर है? फरमाया ना 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 ना, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। लिबास अच्छा रखो, जूता अच्छा पहनो, कैसा नेचर है या नहीं है? लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी आपको कि आप अल्लाह को बिल्कुल भूल जाएं। आपको इबादत भी करनी है, उसके टाइम मुतय्यन कर दिए। और इबादत का तरीका कितना खूबसूरत, दुनिया में किसी मजहब के पास ऐसा इबादत का तरीका, देखो यकीन ना आए ना, जितने इबादत गाहें हैं ना दुनिया में मुख्तलिफ मजहब वालों की, उनकी इबादत गाहों में जाओ और मस्जिद में जाओ। मैं गैर मुस्लिम को दावत देता हूं, सारी दुनिया की इबादत गाहों में जाओ और मुसलमानों की मस्जिद में जाओ। मुसलमानों की मस्जिद में एंटरटेनमेंट का कोई सामान नहीं है, न डेस्क है, न तिपाइयां हैं, कुछ भी नहीं है। सुकून आपको बहुत मिलेगा। और बाकी जगहों पे आप जाओगे ना, आपको जबरदस्त इमारतें मिलेंगी, हर चीज मिलेगी आपको वहां, लेकिन आपको रूहानियत बोलो नहीं मिले। इबादत का तरीका देख लो, नमाज जैसी इबादत है दुनिया की किसी मजहब में, जो आपको पहले वुजू करवाए, आपसे 3 दफा दांत साफ करवाए, आपसे 3 दफा नाक साफ करवाए, है भाई, आपसे 3 दफा चेहरा धुलवाए, बाजू धुलवाए, और जुम्मे के दिन पूरा गुस्ल करवाए, ठीक है ना। और फिर उसको, इसके बाद आपको परमिशन मिलती है